Assalamualaikum everyone, मैं आयला अदनान हूँ, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. As a social media influencer, I know the importance of raising awareness around topics जो usually society में taboo कहलाते हैं, उन पे बात नहीं होती. Hence, Veet Academy was created for this purpose, to help young girls reach their milestones without removing the barriers. One of those barriers is a disease that can be limited if detected on their earlier stages. If we were to be informed about it and could detect it early, it could definitely help decrease the potential of this disease becoming a worldwide or more so a nationwide spread. Magar is saal, Veet Academy has taken one step forward by partnering up with Pink Ribbon, which is going to allow build Pakistan's first dedicated hospital for breast cancer. The breast cancer hospital will be the first of its kind, a state-of-the-art facility for breast cancer diagnosis and treatment in the country. So Pink Ribbon kya hai? It is the biggest NGO in Pakistan currently that is helping fight breast cancer. They do this through various activities such as advisory services, medical co-pay assistance programs, national screenings, and now is the first dedicated breast cancer hospital in Pakistan. According to Ribbon, 1 out of 9 women in Pakistan could be affected by this deadly disease known as breast cancer. Numbers इतने high हैं कि ये औरत हम भी हो सकती हैं, हमारी दोस्तें, our mothers, our sisters, colleagues. So this fact really is scary, but we can eradicate and lower the numbers by spreading awareness. Unfortunately, हर disease के साथ कुछ taboos associate हो जाते हैं. सबसे पहला जो टैबू है, हमारी पाकिस्तानी औरतें घरों और ऑफिस के काम में इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो सेल्फ केयर रखती ही नहीं हैं. इस सेल्फ केयर के बगैर हम अपने सेल्फ एग्जामिनेशंस नहीं कर पाते, which in the latter years can prove to be fatal. The second thing is, अभी तक पढ़े लिखे लोग भी सेल्फ एग्जामिनेशन और डॉक्टर्स के पास नहीं जाते अपने ईयरली एंड 6 मंथ चेकअप्स के लिए. क्यों? ये आज तक हमें भी नहीं पता. Scans को जो लोग seriously नहीं लेते, this is also one of the biggest problem that has been raised in regards to breast cancer awareness. और अगर सिंगल औरतें गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, सबसे बड़ा जो सवाल उनके दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे. To eradicate these taboos, we need to initiate conversation. Breast cancer के ऊपर हमें सिर्फ conversation शुरू नहीं करनी, लेकिन लोगों को educate भी करना है कि ये एक normal disease नहीं है, ये एक जानलेवा disease हो सकता है. आज मेरे साथ एक गेस्ट हैं जिनका नाम है सोनिया कैसर. She is a breast cancer expert and she is also representative from the Pink Ribbon. आज इस कॉन्वर्सेशन में हम स्कैन से लेके सेल्फ एग्जामिनेशन तक और ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन पे टिप्स के ऊपर बात करेंगे. तो आज जो हम इस कॉन्वर्सेशन में बात करेंगे, वी वुड रियली अप्रिशिएट कि आप अपने भाइयों, बहनों, फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, because starting the conversation on breast cancer is the first step in beating it. So let's move on to our conversation with Sonia Kaisar, the expert and program and fundraising manager of Pink Ribbon Pakistan. We are now going to hear and understand how we can defeat this deadly disease. So here's introducing Sonia Kaisar. Assalamu alaikum Sonia, I hope you're doing well. Would you like to introduce yourself to the audience? Walaikum assalam. My name is Sonia Kaisar and I'm Program and Fundraising Manager at Pink Ribbon Pakistan. I've been working here for almost 10-11 years. It's been more than a decade that I'm working here. The organization here, we're trying to create awareness about breast cancer throughout Pakistan, and also dealing with in a lot of activities and programs just to reach out to all the far-flung places of our country. That's really cool. So with all of these years of experience, I'm sure that you must now be an expert on the topic itself. So आप क्या हमारी audience को समझाना चाहती हैं कि essentially breast cancer होता क्या है? Yeah, so basically आप पाकिस्तान में तो क्या, even throughout the world, wherever you go, and if you reach out to any medical expert or a doctor or a scientist, they won't have one answer कि breast cancer क्यों होता है. Research और studies से हाँ बिल्कुल बहुत सारे risk factors जो हैं वो align कर लिए गए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि these risk factors may cause or are the reason of developing breast cancer, but ये कोई एक specific reason नहीं है कि इस वजह से जो है किसी खातून में breast cancer लाजमी होता है. इसी वजह से शायद इसकी कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं बन सकी.
तो हाँ, अभी तक हमारे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर एग्जैक्टली क्यों होता है। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि ये कहा जाता है कि आपकी जब इम्यूनिटी वीक होती है तो तभी आपके ऑर्गन्स के अंदर बैड सेल्स एक्यूमुलेट करते हैं एंड एट टाइम्स दे कैन फॉर्म ट्यूमर और कैंसरस लम्प कोई चीज़ बना सकते हैं। तो वो जो है वो इम्यूनिटी से बिल्कुल रिलेटेड है और यूजुअली जो कैंसर होता है वो आपके किसी वाइटल ऑर्गन के अंदर होता है। तो ख़वातीन में ज़्यादातर ये ब्रेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, सो एज यू सेड कि देयर इज़ नो वन स्पेसिफिक डेफिनेशन और व्हाट ब्रेस्ट कैंसर इज़, तो मूविंग towards the other parts of the conversation, is there any way for a normal woman to detect breast cancer in its early on stages rather than finding it out at latter stages when you see visible symptoms? Absolutely. So थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरह है कि वर्ल्ड वाइड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ डूइंग योर सेल्फ डायग्नोसिस एंड प्रोसेस ऑफ अर्ली डिटेक्शन, उसमें क्या है कि 3 से 4 चीज़ें सेट कर दी हैं फॉर एवरी वुमन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर और अ मेडिकल एक्सपर्ट, जस्ट वन, you're a woman and you're above the age of 15, let's say, you can do your monthly self-examination। और इसको ये पहली चीज़ आप कर सकते हैं एंड देन यू कैन हैव योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो आप किसी डॉक्टर से करा सकते हैं। एंड देन थर्ड इज़ योर ईदर यू कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड और योर मेमोग्राम। सो जो सेल्फ एग्जामिनेशन है उसको करने के 3 तरीके होते हैं जो बड़े सिंपल हैं। इट टेक्स हार्डली 5 to 6 minutes एंड यू कैन गेट योर सेल्फ एग्जामिनेशन। बट बिफोर वी गो देयर, जो गर्ल्स हु हैव देयर मंथली साइकिल, जो अभी मेंस्ट्रुएट करती हैं, वो यूजुअली अपने मंथली जो डेट्स होती हैं उसके 2-3 डेज़ के बाद करें, बिकॉज उस वक्त आपकी बॉडी इतनी स्वेल नहीं की होती। इट्स ईजी फॉर यू टू डू योर सेल्फ एग्जामिनेशन, योर बॉडी इज़ लेस टेंडर देन। एंड फीमेल्स वो ओल्डर आफ्टर द मेनोपॉज, वो कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर सकती हैं एंड दे कैन डू देयर सेल्फ एग्जामिनेशन। वो करते कैसे हैं, उसके 3 तरीके हैं। एक तो यू कैन, जो लाइंग पॉस्चर है, जो आप बिल्कुल फ्लैट फ्लोर पे यू कैन ले डाउन ऑन योर बैक और आप अपना आर्म स्ट्रेच करके अपने विद द पार्ट ऑफ योर फिंगर्स आप सर्कुलर मोशन में यू कैन फील एनीथिंग अंडरलाइन योर स्किन। इट कुड बी एनी लम्प, इट कुड बी अ डेंट, ये आप देख सकते हैं। What would you say is more common, finding a lump or a dent, and how does one differentiate between both of these? Usually it is a lump, but again, as we speak about lumps, 80% of lumps are benign, they're harmless. So it's not you who's going to decide कि अगर आपको lump feel भी हो गया है तो आपको लाजमी God forbid cancer है। It could be any reason for forming that lump। तो आप अगर उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो your first call for action is to you consult a medical doctor, a medical expert or a doctor for that। All right, so that's wonderful information you've shared with us, and I feel like सेल्फ एग्जामिनेशन भी हमने प्रीवियसली I've spoken about it, बहुत ज़रूरी होता है in order to detect it in its earlier stages and when you're feeling such symptoms. So एक बहुत interesting सा सवाल है which I hadn't thought of before, but is there any association of breast cancer with the gender, या is there a slight possibility for men even facing this disease? Absolutely जी, जो breast cancer वो सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता, ये मेल्स की भी प्रॉब्लम है। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट मेल्स, तो जो हम अर्ली डिटेक्शन, जब मैं भी आपको एक्सप्लेन करी थी हाउ टू डू योर सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मेमोग्राम्स, ये मेल्स करा भी नहीं सकते। बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि मेल्स में हो। बट एज वी स्पीक अबाउट दिस, पाकिस्तान में ग्लोबली जो एक रेशियो है मेन हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, उसमें पाकिस्तान काफ़ी आगे है। यहाँ पे मेल्स को ज़्यादा breast cancer होते हैं if you compare to other countries. I feel like this also is due to the taboo and stigma that's been raised about breast cancer. तो women के तो already होता है, and for men it's just on another level, if I'm not wrong. Absolutely, you're right. It is about awareness, and since we don't talk about it, there are a lot of things we don't know about breast cancer because it's not just a common disease. There are a lot of things attached to it. So आप किसी ऐसे फोरम पे तो बड़ा आसान है बात करना और आप पब्लिकली भी बात कर सकते हैं, पर अभी भी घरों में, ड्राइंग रूम में, फैमिलीज के साथ बैठ के लोग हेजिटेट करते हैं। Yes, it is, and we're not talking about like very
रूरल एरियाज, वी टॉक अबाउट अर्बन सिटीज़, एजुकेटेड फैमिलीज, तो अभी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. सो जब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उससे जो डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि लॉट ऑफ मिथ्स और बहुत सारी जो टैबूज हैं वो अटैच हो जाते हैं, और बहुत सी ऐसी मिसकंसेप्शंस होती हैं जो लोगों को लगता है कि ये सच है, और जिसमें से एक के सबको लगता है कि ये सिर्फ फीमेल centric issue है, whereas males are also victims of breast cancer. बिल्कुल. So let's move the conversation towards symptoms. If someone does have breast cancer, उसके symptoms क्या होते हैं besides just feeling a lump or feeling a dent in the designated area? सी उसके डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं. एक तो बिल्कुल ये है कि कोई आपको लम्प फील हो जाए, और वो भी तब होता है जब आप प्रॉपर अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो. अदरवाइज़ अगर किसी फीमेल को लम्प फील होता है, दैट इज़ कि जब वो थोड़ा बड़ा साइज़ हो चुका होता है. इसके अलावा आपकी कोई रैश हो सकती है, कोई बड़ी सिवियर आपको स्किन इरिटेशन हो सकती है, आपका निपल इनवर्ड यानी कि वो अंदर की तरफ जा सकता है. A very evident change in the size of your breast is also one of the factors to look at. और आपका जो ऑरेंज पील सा एक स्किन का स्ट्रक्चर है वो हो सकता है. सो ये लंप के अलावा ये 4-5 चीज़ें हैं. एंड ऑल्सो सिर्फ जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर होता है वो आपके आर्म पिट्स तक जाता है. सो इवन जब आप अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो यू ऑल्सो नीड टू ऑब्जर्व योर आर्म पिट्स, बिकॉज आपके लिम्फ नोड्स जो हैं वो आपके आर्म पिट्स तक होते हैं. बिल्कुल. So, definitely talking about symptoms, the next thing we talk about is self-examination. और ये अब सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, but girls in their menstrual years, hitting puberty, and women also is very essential. तो self-examination, you've spoken about the laying down method कि आप नीचे एक flat surface पे लेट के आप check कर सकते हैं. Would you say that there are any other methods of doing a self-examination at home before going to a clinic? एब्सोल्युटली. सो क्विकली मैं आपको बता दूं, एक तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि आप फ्लोर पे लेट के, उल्टा लेट के जो है वो अपना पोस्चर ऐसा हो कि आप अपने बिल्कुल ब्रेस्ट को विद द पैड ऑफ योर फिंगर्स आप उसको सर्कुलेट मोशन में देखें. इसी तरह नाउ यू आर बेसिकली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. नाउ यू आर लुकिंग एट द सिम्टम्स. पहले आपने फील किया, नाउ यू आर लुकिंग एट एनी चेंज. आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने दोनों बाजू जो हैं वो अपने सर के पीछे करें, और आप अब शीशे के सामने देख रहे हैं कि कोई साइज़ में चेंज तो नहीं है, कोई निपल इन्वर्ट तो नहीं है. नाउ यू आर लुकिंग एट द चेंजेस. तीसरा है आप नहाते वक्त शावर में कर सकते हैं, बिकॉज यूजुअली आपकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है. सो इट्स ईजी फॉर यू टू सर्कुलेट योर हैंड एंड फील कि अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो आपको अनयूजुअल लग रही है. और ये नहीं होता है कि आपने 6 महीने या साल बाद एक दफ़ा किया और आप कहेंगे ये. यू हैव टू डू दिस एवरी मंथ, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ओनली देन यू आर फेमिलियर टू योर बॉडी एंड योर ओन स्ट्रक्चर. और फिर अगर कोई अनयूजुअल चीज़ होती है तो फिर आप उसको फील कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम भी अर्ली डिटेक्शन का पार्ट ही हैं. अल्ट्रासाउंड यंग लड़कियां अगर कोई उनको चीज़ फील हो तो दे कैन गेट देयर ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड्स डन. अलग ब्रेस्ट प्रॉपर अल्ट्रासाउंड्स की प्रोब्स होती हैं, वो आप करवा सकते हैं. और मेमोग्राम अगर किसी यंग लड़की को कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मेमोग्राम इज़ बेसिकली अ ब्रेस्ट एक्सरे मशीन. तो मेमोग्राम 40 ईयर्स से ऊपर की जो फीमेल्स हैं दे शुड गेट देयर मेमोग्राम्स डन एटलीस्ट वंस इन 2 years टाइम without having any symptoms. So if you're a female and you're above the age of 40, get your mammogram done at least once in 2 years time. So ये standard international techniques हैं जो early detection के लिए set कर दी गई हैं. I think this is such vital information, especially for Pakistani women, keeping in mind कि हमारे stats बहुत high हैं in comparison to India, जहाँ 1 out of 22 women are detected with the disease, and with us it's 1 out of 9 women. तो I definitely feel कि जो अभी आपने point बनाई है that checking yourself every month, not just कि साल में एक दफ़ा आपने check कर लिया, अल्लाह ना करे ये चीज़ time देख के नहीं आती. It does not look at the day, it does not look at the year. So I think it is essential कि जो भी हमारी audience से देख रही है, हर month there are 2-3 different methods that she has spoken about regarding self-examinations. आप अपने खुद के self-examinations करें, और अल्लाह ना करे if you feel a lump, you should go get your ultrasound done, and only a mammogram if it is advised by the doctor, because I think that is the latter stage of an X-ray. So coming to the scans that we just spoke about, there is an ultrasound and there is a mammogram. तो लोगों के पास एक ये taboo होता है कि इनसे दर्द होता है. So would you say that these are painful
for women who go and get these scans, या there's no harm to go get a scan done? अल्ट्रासाउंड तो बिल्कुल इतना पेनफुल नहीं होता, वो तो सिंपल प्रोब्स होती हैं, जैसे आप बॉडी में किसी भी जगह का अल्ट्रासाउंड करो, इट इज़ जस्ट लाइक दैट. मेमोग्राम्स भी बेसिकली देयर 2 प्लेट्स जिसमें आप अपना ब्रेस्ट रख के उसकी जस्ट दे टेक अ पिक्चर ओनली. सो हाँ, कई दफ़ा ऐसे होता है, यू नो, फीमेल्स वैसे इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, यूर लिटिल हेजिटेंट एंड यू नो यूर नॉट कंफर्टेबल, इसलिए आप शायद थोड़ा इनकन्वीनियंट फील करते हैं, बट इट्स नॉट पेनफुल. ये पेनफुल बिल्कुल नहीं, जैसे नॉर्मल एक्सरेज होते हैं, ये भी उसी तरीके से है. Okay, so that's great that you have busted one myth कि ये painful हो सकता है. I feel like ज़्यादातर for women and young girls, especially the ones who are more in conservative households, even going to the hospital to get a check is something that can create a lot of stigma. So is there any one tip you would suggest, like one piece of advice as a representative of an NGO that has been doing wonders to eradicate breast cancer? What is the one piece of advice you would give to a young girl on the topic at hand? See, it's very simple. जैसे आप घर में अपने बड़ों के साथ, अपनी अम्मी अब्बू के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आप इसको भी उतना ही नॉर्मल समझें. घरों में हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, हम हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही बात है. और इसमें अगर आप शर्माते हैं तो आप प्रॉबली किसी के लिए कहना कि यार उसको शर्म आ रही है बहुत छोटी सी बात है, बट इन रियलिटी ये चीज़ें छुपाना और शर्माना किसी इंसान के लिए फेटल हो सकता है. सो इट इज़ दैट सीरियस. अगर आप इमेजिन करें कि अ पर्सन हु गोज टू अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर टेल्स यू कि जी आप लेट आई हैं, अगर आप कुछ महीने पहले आ जाती हैं तो शायद हम आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो इमेजिन द बर्डन और इमेजिन द पेन एंड सफरिंग. तो इसलिए ये बात करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है. ये एक जिस्म का हिस्सा है और एक बीमारी है जो गॉड फॉरबिड किसी को भी हो सकती है. सो इसमें तो बल्कि आपको खुद भी अपने लिए केयरफुल होना है, एंड यू हैव टू बिकम अ टॉर्च बेरियर फॉर योर एंटायर फैमिली एंड नेटवर्क. And make sure and encourage that every female around you is sensitized on the issue and she checks herself every month, and if she is above the age of 40 तो उनकी कोई clinical examination या mammogram भी लाजमी हो. बिल्कुल. I think all the information you've given is so imperative, especially एक conversation शुरू करना, सिर्फ एक बात करना, you know, to a trusted adult या to another female or even a male. I mean, we need to destigmatize the topic कि it can save lives. And thank you so much, Sonia. आपने बहुत बहुत informative tips share करी हैं, advice share करी हैं, and more importantly, awareness as a whole on the topic. So thank you so much, Sonia, for being so informative on the topic. I'm sure कि हमारी audience ने आज बहुत कुछ सीखा होगा breast cancer के बारे में, and more importantly इसको detect कैसे करते हैं और इसको as a whole eradicate कैसे करते हैं. अगर आप लोगों के पास और कोई questions हैं in regards to what we spoke about today, please chat box में अपना सवाल लिखें and the representatives will get to it shortly. So I think today's session conclude one strong point that we are indeed stronger than cancer. Even though this is a deathly disease, we together by spreading awareness can really eradicate it, and more importantly spread awareness to all the women and men in Pakistan. तो आज का मैसेज अपनी बहनों, दोस्तों और बेटियों को प्लीज़ स्प्रेड करें. शेयर दिस लाइव as much as you can. ये मैसेज आप अपने डोमेस्टिक स्टाफ को भी बताएं कि एज अ होल पाकिस्तान कैन ट्रूली बीट ब्रेस्ट कैंसर. Lastly, we are so proud to see such insightful partnerships such as the Wheat Academy partnering up with the Pink Ribbon come along, क्योंकि ये सिर्फ बेनिफिट ही कर रही है हमारी औरतों को and more importantly इस डिजीज़ को eradicate करने में. So आप लोग भी इस कॉज में हेल्प कर सकते हैं by firstly donating to the specific cause. The account details will be mentioned in the campaign video और यहाँ भी mention हो जाएंगी. Secondly, by sharing this live, जितनी awareness हम अवाम spread कर सकते हैं इस topic पे और बेहतर रहेगा. Thank you so much for joining me today. I hope you guys found this insightful. This is me, Aila Adnan, signing off. Take care. Khuda Hafiz.